Hello student, today I am going to teach you Social Science chapter number 6 part 4 Religious and Social Awakening in Colonial India. Social religious reformers of the 19th century. Many Indian thinkers and reformers came forward to bring reform in society. According to them, society and religion were interlinked. Both needed to be reformed to achieve positive growth and development of the country. Hence are reformers to the initiated to awake the Indian masses. Some of these reformers founded organizations to spread the awareness about which you will read now. Another massive contributions of these reformers was in the field of education. सामाजिक धार्मिक सुधार 19वीं सेंचुरी में जो 19वीं सदी में कई भारतीय जो थे जो समाज सुधार का कार्य करने के लिए आगे आए, उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसमें से उन्होंने क्या किया, धर्म को आपस में जोड़ा, दोनों में सकारात्मक और विकास और देश के विकास को फिर से स्थापित करने के लिए, सुधार के लिए जागरूकता का कार्य किया। इसलिए हमारे धर्म सुधारकों ने भारतीय जनता को जगाने की पहल की और इन सुधारकों ने जागरूकता फैलाने के लिए कुछ जो हम एनजीओ बोलते हैं संगठनों की स्थापना की, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन सुधारकों का यह एक अनोखा, यह बोल सकते प्रमुख योगदान था। फर्स्ट हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय। Raja Ram Mohan Roy was born in a Brahmini family of Bengal. He knew many languages and had read Quran, Bible and the New Testament along with Hindu scriptures in great depth. Liberal education exposed him to different cultures and philosophies. Deeply moved by the plight of his brother's widow, who had been forced to commit sati, he was determined to uproot this social practice. This led him to challenge other unfair social and religious practice prevalent at that time. He founded Brahmo Samaj in 1828. He was the first person to take an initiative to challenge the practice of sati, and it soon became his lifelong cursed. The mobilized public opinion and cited the scriptures to show that this practice had no connection in Hindu religions. In the process, he faced displeasure and enmity of Orthodox. राजा राम मोहन राय, इनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बंगाल में, और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबल तथा हिंदू जो ग्रंथ है सो गहराई से उनका अध्ययन किया था और उदारता से या बोल सकते हैं कि शिक्षा में उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। उसको वास्तव में कुछ गहरा अवसाद हुआ। यहाँ बोल सकते हैं कि गहरी बात उनको तब महसूस हुई जब उनके भाई की जो पत्नी थी, उनके भाई की मृत्यु होने के बाद उसे सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उसकी दुर्दशा पर उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। उस समय उन्होंने अन्य अनुचित सामाजिक और धार्मिक जो प्रचलित प्रथाओं को चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में जो समाज क्या बोलते ब्रह्मो समाज की स्थापना की
और सती प्रथा को चुनौती देने के लिए ये उन्होंने पहल करने वाले पहले व्यक्ति थे। In the effort, he was supported by the then Governor General of India, Sir William Bentinck. A law was passed in 1829 making sati legal and punishable. He also made effort to advocate widow remarriage and condemn child marriage. भारत के जो उस समय के गवर्नर जनरल थे सर विलियम बेंटिक ने इनका समर्थन किया और 1829 में एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध या बोल सकते हैं दंडनीय माना गया। उन्होंने बाल विवाह और विधवा पुनः विवाह की वकालत के लिए प्रयास भी किए। He presented a synthesis of the Eastern and the Western thought, an authority on the Vedas, Vedanta and Upanishad. He also took up the best in all religions, as he was well versed in the scriptures. He advocated the importance of Vedas in reforming religion and upheld the fundamental unity among all religion. He held that all the principal ancient texts of the Hindus preachers monotheism, worship of one God, and opposed polytheism, believe in more than one God. He was critical of idol worship and observance of meaningless रिचुअल्स। उन्होंने जो है पूर्वी और पश्चिम विचारों के का जो है अध्ययन किया या हम बोल सकते हैं जानकारी प्राप्त की और धर्म शास्त्रों के अच्छे जो बातें थी उनको ली। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की और धर्म सुधार तथा सभी धर्मों के बीच एकता को सही ठहराया। उनका मत था कि हिंदू ग्रंथों में एक ईश्वरवाद की पर जोर दिया गया है, एक ही ईश्वर होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। और सभी प्रमुख जो पुराने जो ग्रंथ हैं एक ही पूजा करते थे, चाहे वो बहुदेव हो, एक से अधिक भगवान में विश्वास का विरोध किया गया है। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन रिवाजों का खंडन किया था। He strongly advocated the learning of English language, literature, scientific advancement and technology of modernized India. He maintained an English school in Calcutta and his own cost. Subjects like mechanics and philosophy were also taught among other subjects. A Vedanta college was opened in 1825. Raja Ram Mohan Roy helped in the opening of the Hindu college in Calcutta for higher learning. उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति और आधुनिक जो है भारत के लिए आधुनिकीकरण के लिए वकालत की। उन्होंने कोलकाता में अपने पैसे से एक अंग्रेजी स्कूल बनवाया। यहाँ और भी विषयों के साथ जो है इंजीनियरिंग या मशीन्स और दर्शन जैसे यहाँ पर फिलॉसफी लिखा दर्शन जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाता है। वेदांता कॉलेज 1825 में खोला गया। इन्होंने जो राजा राम मोहन रॉय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी खोला गया। स्टूडेंट ये जो टॉपिक था वो स्पेशली राजा राम मोहन रॉय के ऊपर था कि उन्होंने किस तरह से समाज सुधार का कार्य किया। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।